children, this is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I begin with another geography chapter, that is agriculture. And this chapter I have divided into a number of videos, and I would be uploading the videos gradually. So today I start with the meaning of agriculture. Agriculture basically is a primary activity. Now what do you mean by a primary activity? A primary activity is an activity in which the natural resources are directly used to produce something. जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उससे फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं और उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है. जैसे अगर मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. Now when we talk about India, India is primarily an agricultural oriented country, and 3/4 of the population of our country basically practice agriculture. When you talk about the sectors of economy, then agriculture or this sector is the sector in which the maximum number of people are employed. Now we come to the types of farming. So farming in the farming activity, there are various types. Now what has happened that over a period of time, because of the advancement of technology, new methods of farming have been introduced. Whether you talk about sowing of seeds or you talk about irrigation methods, so there has been a lot of changes which have happened. Based on that, we have divided the farming activity into various types. So let's talk about primitive subsistence farming. In this primitive subsistence farming, the main thing is that it is practiced on a small piece of land. स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है और जनरली जो होता है कि किसी परिवार के जो लोग होते हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या मैक्सिमम जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको एज ए लेबर यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो एक तरीका है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है. इन दिस व्हाट हैपन्स, द फार्मर्स बेसिकली क्लियर द पैच ऑफ लैंड एंड देन दे प्रैक्टिस फार्मिंग देयर, और जब थोड़े दिनों के बाद उसको फिर वो खाली छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और उस दूसरी जगह पे अगेन दे क्लियर दैट पैच ऑफ लैंड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फार्मिंग. उससे क्या होता है कि जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो रीगेन हो जाती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कैन से प्रिमिटिव टूल्स लाइक डिगिंग स्टिक्स एंड हो, एंड इन दिस द क्रॉप और द जो फसल होती है वो डिपेंड करती है मानसून के पानी के लिए, और इरीगेशन के लिए मानसून पे डिपेंड करती है. This is also called as slash and burn, as I told you, and in many parts of the country or world it is known by different names. If we talk about India, in northeastern states, it is being called as choming. Second type of farming is intensive subsistence farming. So in intensive subsistence farming, what happens that it is being practiced on large piece of land, and in this modern methods of you can say agriculture are being used. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग एम्प्लॉयड. इसमें इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ पे राइट टू इनहेरिटेंस है, उसमें क्या होता है कि जो एक फैमिली के पास ज़मीन होती है दैट इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि 2-3 जनरेशन के बाद वो जो ज़मीन का साइज होता है, लैंड होल्डिंग होती है, वो कम होती चली जाती है, बट के उसका साइज कम हो जाता है. अब उसकी वजह से क्या होता है कि लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग वेरियस काइंड ऑफ यू कैन से लाइक सीड्स जो होते हैं वो भी हाई यील्डिंग, कुछ हाई HYV सीड्स भी यूज़ किए जाते हैं, या फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. तो ये वाली जो फार्मिंग होती है इसकी वजह से कई बार लैंड के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन जाता है. Third type is commercial farming. So in commercial farming, as the name suggests, that it is being done for commercial purpose, and food crops और cash crops जो होते हैं, but वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी पार्ट में वो सेम क्रॉप जो होता है उसको हम फूड क्रॉप के नाम से जान सकते हैं और किसी में वो कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है. जैसे कि अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें तो राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप. सो वो डिपेंड करता है कमर्शियल फार्मिंग में. कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हैवी इनपुट्स आर बीइंग यूज्ड, मॉडर्न इनपुट्स आर बीइंग यूज्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड. तो इसमें भी जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं. इरिगेशन की जो मेथडोलॉजी है वो भी जो नए नए तरीके हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं. सो दिस इज कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग का ही एक सब टाइप है प्लांटेशन. प्लांटेशन एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, सो इन दिस वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट इज बीइंग ग्रोन, एंड
That is like, for example, if I talk about tea, coffee, rubber, you must have heard these names: tea plantation, coffee plantation, rubber plantation. तो वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं विद द हाई यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो हमारी कंट्री में जैसे जो नॉर्थ बंगाल का एरिया है और असम है, कर्नाटका है, वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ये लेबर इंटेंसिव होता है और ज़्यादातर यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं या माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है. So this is all about the various types of farming, and stay tuned to watch